Hello friends, this is Vishakha Jagar coming up with next round of current affairs. And I said I make this video to save you from what? Joey syndrome. आपको मैं जोई सिंड्रोम से बचाने की कोशिश करती हूँ and we all try to educate ourselves in the process. And what I do is I pick up one hot topic or two hot topic from what has been in news or what has been at the top of the social media platforms. चाहे आपके ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे आप यूट्यूब में ही क्यों ना फॉलो कर रहे हो, जहाँ भी समटाइम आई पिक अप द टॉपिक एंड समटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी माइट बी ऑन यू. अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक न्यूज़ में है पर आपको समझ में नहीं आ रहा, इन दैट केस यू कैन सिंपली पिन मी, you can simply put about that in comment section, and from the comment section I can make a video out of it explaining you in depth कि इसका origin कहाँ से हुआ, इसके पीछे की साइंस, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी, इकोनॉमी जो भी है I can explain that to you, and this is why I call this as let us explain section. Now let's move ahead. आज के न्यूज़ के बारे में बात करते हैं. आज के न्यूज़ में it was in news which was followed by many newspaper including Live Mint, which talked about that Indians fund in Swiss bank have jumped to nearly 20,000 crore, which is highest in the 13 years. मतलब 13 साल में highest था. And ever since this news was like it was on the social media platform, Twitter went crazy about this, and it was entirely upon the Twitter. Now I have picked my favorite for you, जिनको मैं यहाँ पे show करती हूँ. But let's see कि how Twitter went crazy about this. Now, in order to show you like how Twitter went crazy about this, is that Indian money is Swiss bank have reached its highest scale under the Modi. This is about like Swiss only. If Narendra Modi ji became PM of India, all money from Swiss account will be recovered, and every Indian will get 15 lakh rupees. ये याद है किसी को ये जुमला हमें पढ़ाया गया था आज से 10 साल पहले और फिर आज से 3 साल पहले भी, बट अपेरेंटली दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग एग्जैक्टली द वे आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड अस. जो उन्होंने कहा ऐसा कुछ वो कर नहीं रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ट्विटर वेंट एक्चुअली क्रेजी अबाउट दिस, एंड एवरीबडी इज़ राइटिंग कि वो 15 लाख वाला जुमला कहाँ गया. और व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि वी विल bring back money, instead what is happening is कि Indian money in the Swiss bank account have increased. Now because of this, every party is actually pulling the leg of the government. Everybody is actually saying one thing or another. In fact, even the media, social media platforms or the journalists have also asked the same question. Though वो प्राइम मिनिस्टर से सेम सवाल नहीं पूछते, जो प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछ रहे होते हैं वो यूजली ये सवाल पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, पर हम वो सवाल नहीं पूछेंगे, हम सही सवाल पूछेंगे, and that is like our question is what is actually the analysis of the news. Now पहले let me give you the glimpse of my favorite memes in the entire Twitter went crazy about this. Indians fund in Swiss bank is now highest in the last 13 years. Now corrupts to Modi ji. This is how corrupt will say. मैं तो तेरे को हरामी समझा था रे, पर तुम देव मानुष निकला. So this becomes my favorite because some way people don't change, and some way even facts cannot cannot change some people, but I hope you're not one among them, because here we are breaking the one thing, that is Joey syndrome. All your opinion should be informed. This is what we are trying to do. Like whatever that is in news, हम आपको उसको properly analyze करने की कोशिश करेंगे. We'll try to bring all the perspective pro and anti दोनों. और इस news में आपको दिख जाएगा. Let us not take any stand, और it's upon you कि decide कि actually which side you want to take, or if you don't want to take the side, just inform yourself. Now let's moving ahead. Where does it all started? It all started with this news in the Live Mint में भी देखा, economic type में भी देखा कि अब इंडिया में जो स्विस बैंक में जो इंडिया का पैसा है 20,700, वो हाईएस्ट हो चुका है पिछले 13 साल में, जबकि पिछले 2 साल पहले डिक्लाइन भी हो रहा था. ऐसा नहीं है कि मतलब ऑलवेज राइजिंग, ये कर्व हमेशा से ऐसे राइजिंग कर था, नहीं, बीच में डिक्लाइन हुआ फिर राइज हो गया ये. सो लाइक दिस इज़ द ट्रेंड कि जो स्विस अकाउंट में हमारा पैसा जा रहा है. अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज स्विस मनी इज़ कंसिडर एज ब्लैक मनी, कि वहाँ जो पैसा जाता है वो यूजली ब्लैक मनी होता है. अब इस बात की तह तक हम जाएंगे, क्या सारा स्विस मनी ब्लैक मनी है? नाउ व्हाट्स इन द डेटा, लाइक शेक्सपियर सेज ना कि व्हाट्स इन द नेम, बट देयर इज़ अ लॉट इन द नेम एंड दिस लॉट इन द डेटा. तो अब हम उसे एनालाइज करेंगे. इन दिस एनालिसिस
it talks about कि data says कि the fund that is classified as customer account deposit ये कम हुआ है, फंड थ्रू फिड्यूशरीज एंड ट्रस्ट भी कम हुआ है, बट बॉन्ड सिक्योरिटीज वगैरह आपके बढ़ गए हैं. अब इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपली आप तो ये नहीं जानना चाहते कि कस्टमर अकाउंट, फिड्यूशरी, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, इसके डिटेल में कौन जाए. ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट दिस. अगर इस पे कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बॉन्ड्स क्या है, सिक्योरिटीज़ क्या है, कस्टमर अकाउंट डिपॉजिट क्या है, बट यहाँ नहीं. यहाँ मुद्दे की बात करते हैं. मुद्दे की बात क्या है, आप ये जानना चाहते हो, डज दिस मीन्स द ब्लैक मनी हेल्ड बाय इंडियंस इन स्विस अकाउंट हैव राइजन. क्या पैसा बढ़ गया है? क्या ब्लैक मनी बढ़ गया है? क्या ये काला पैसा बढ़ गया है? तो लेट्स the answer to this question is not exactly, and you might be having response that I'm having right now कि okay स्विस अकाउंट में पैसा बढ़ गया है but black money नहीं. Now let's go into detail कि how is that possible, why like people are like a side is claiming that this is not the case. Now first the judgment is set by the Swiss authorities themselves. यहाँ बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले स्विस अथॉरिटी आ गई है. Swiss authorities said that asset held by Indian resident cannot be considered as black money as they actively participate with India or support Indian fight against tax fraud and evasion. Tax fraud and evasion is a main way by which यहाँ का पैसा सिंगापुर में जाता है. ये आपके प्यारा, मेरा प्यारा भारत महान का पैसा स्विस में जाता है. सॉरी, स्विस थोड़ा इस तरफ है. स्विस में जाता है किस तरीके से? टैक्स फ्रॉड और एवेजन से. आप यहाँ से पैसा बचाते हो और वहाँ पहुँचा देते हो. अभी कैसे करते हैं? आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ द स्विस अथॉरिटी ऑल्सो सेज कि हाउ डू वी कॉपरेट. ही सेज देयर इज एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टैक्स मैटर, जो कि 2018 में फोर्स में आ गया था. तब से हम क्या कर रहे हैं, स्विस अथॉरिटी कहता है, तब से हम एक्टिवली वी आर शेयरिंग डिटेल अकाउंट ऑफ इंडियंस हु हैव लाइक यहाँ पे सस्पेक्ट हैं कि दे हैव इंडल्ज इन फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग. अगर हमें थोड़ा सा भी इस तरीके का आभास, अंदाज या फिर अगर रूहानी ताकतें हमें आके ऐसा कुछ बताती हैं तो हम फटाफट क्या करते हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट को बता देते हैं. अब इस स्विस अथॉरिटीज़ का क्लेम है कि बाय दिस वे द मनी इन स्विस अकाउंट इज नॉट एक्चुअली ब्लैक मनी ऑल्सो. बट इतना ही नहीं, और भी कहानी में और भी है, कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी में और भी किस्सा है. किस्सा क्या है? द फिगर डू नॉट इंक्लूड द मनी दैट इंडियंस NRI और लाइक एनी अदर माइट हैव इन स्विस बैंक इन नेम ऑफ थर्ड कंट्री एंटिटीज़. मतलब इसमें थर्ड कंट्री एंटिटीज़ का अभी फिगर में इंक्लूड नहीं किया गया है. और यहीं से आपका कैच शुरू होता है, बिकॉज स्विस गवर्नमेंट तो कह रही है कि पैसा ब्लैक नहीं है, बट लाइक थर्ड कंट्री एंटिटीज़ को समझना क्यों ज़रूरी है कि व्हाट डज इट हैव टू डू विद ब्लैक मनी. थर्ड कंट्री, लाइक आप भी समझ रहे होंगे कि थर्ड कंट्री एंटिटीज से क्या मतलब होता है. इसको समझना ये है कि द आंसर इज अंडरस्टैंडिंग हवाला ट्रांजेक्शन. पहले हम समझेंगे कि हवाला ट्रांजेक्शन क्या होती है. अब हवाला ट्रांजेक्शन ऐसे होती है, ये मिस्टर रॉबर्ट है और इनके पेरेंट रहते हैं एक्चुअली इंडिया में, ये खुद रहते हैं US में. अब ये चाहते हैं कि ना यहाँ पे अपने पेरेंट्स को ये पैसा पहुँचा दे. अब बैंक के थ्रू जब जाएंगे तो पहली बात तो पैसा लीगल होना चाहिए, और दूसरा टाइम टेकिंग होता है ये पूरा प्रोसेस ना, कि आप IMPS भी देख लीजिए. अब वो फास्टेस्ट कम से कम 15 दिन का वेट तो लेता है, और उसमें से भी 4-5 घंटे का टाइम किस लिए होता है? अगर मोर देन सम एक्स मनी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा. आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया कि दिस थिंग इज टाइम टेकिंग, और पैसा लीगल भी होना चाहिए. पर लेट्स हम सोचते हैं कि पैसा लीगल है तो उसमें क्या होगा. नाउ दिस मिस्टर रॉबर्ट विल कॉन्टेक्ट अ हवालादार यहाँ पे मिस्टर हार्वी, एंड हार्वी को $500 ट्रांसफ़र कर देगा. अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एक्सचेंज रेट भी जाती है, आपको पता है. बट इसमें क्या करेगा, 10% विल ट्रांसफ़र इस मिस्टर हार्वी इज एक्चुअली इंगेज इन हवाला. सो ही हैज़ 2 accounts, one in US and one in India. The moment you transfer $500 in his account, इसका अकाउंट यहाँ पर है, इसको बिना पैसे ट्रांसफ़र किए सिर्फ एक कॉल करेगा. ही इज़ गोना मेक अ कॉल एंड आस्क लाइक कि यहाँ से जो पैसे ना इसके पेरेंट को ट्रांसफ़र कर दो. जस्ट बाय मेकिंग अ कॉल आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया. एंड दिस वॉज लीगल इन अर्लियर टाइम्स. पहले ये बहुत लीगल मैथड होता था पैसे ट्रांसफ़र करने का. क्यों? पैसे बच जाते थे, आपका इतना टाइम बचता था. बट दिस लीगल मैथड कैन ऑल्सो बी, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि हवालों को हमेशा इलीगल मत मानो, थोड़ा लीगल भी चलता है यहाँ पे. इसको इलीगली एक्सप्लॉइट ऐसे किया जाता है कि बाय द वे आप चाहते हो
कि आपका पैसा ब्लैक मनी पहुंच जाए उस तरीके से। अब आपके पास ब्लैक मनी है, अब ये इन्फॉर्मेशन आना बैंक को दे रहे हो ना किसी को दे रहे हो, मिस्टर एक्स को दे रहे हो। एक्स इज सपोजिटली अ बिजनेसमैन। अब जब यहाँ पे देखिए मिस्टर एक्स ने अपनी कंपनी यहाँ पे भी बना रखी है, यहाँ पे भी, एंड ही वुड परचेज समथिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ क्या ना करप्शन कैसे करते हो, मिस्टर एक्स वुड परचेज समथिंग जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, परचेज समथिंग, बट उसकी वैल्यू कितनी दिखा देगा, मे बी $500 दिखा दी रुपीज, एंड पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। Now this purchase have actually reached to that person, इसको दिखाएंगे यहाँ पे ना। What has happened in the entire process is इस पूरे प्रोसेस में व्हाइट मनी, जो ब्लैक मनी वो व्हाइट हो गया, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन में आ गया लीगल उसमें ना कि यू हैव परचेज समथिंग, बट व्हाट यू हैव परचेज हैव जीरो वैल्यू। जैसे आपने बोला कोई बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, कैसी पेंटिंग है, एक वाइट पूरा का पूरा आपका वो है और जिसमें रेड डॉट है, and you're talking about oh marvelous, it depicts about the insignificance कि कैसे ना human being पूरे entire universe में insignificant है, blah 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 blah, and you know artifacts are actually one of the major ways ना पैसे को इधर उधर करने का। so this is what like the black money is made why। अब जैसे ABC है, इसको अपना ब्लैक मनी करना था, इसने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा सामान खरीदा जिसकी वैल्यू जीरो है, बट इनवॉइस में क्या दिखाया 1 मिलियन में खरीदा है। इन महाशय ने कुछ ऐसी पेंटिंग ही खरीदी होगी, कुछ ऐसा जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, बट एक्सपेंसिव होगा भी नहीं। इन द एंटायर प्रोसेस द ट्रांजेक्शन हैज मेड समथिंग दैट वाज फिशी एज समथिंग एज वाइट। यहाँ से ये आपके कॉर्पोरेशन में आ गया, यूएस चला गया परचेज में ना, दिस मनी, इस मनी को यहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, स्विस अकाउंट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अ थर्ड एंटिटी। Now this person, X person, has transferred it money into Swiss, but अपने नाम से नहीं भेजा, पहले किसी कॉर्पोरेशन ने कॉर्पोरेशन को मनी भेजा है, and this corporation has sent money to Swiss। अब ये X नाम से है, Y नाम से, यहाँ पे बड़ी ईमानदारी चलती है। ये जो कॉर्पोरेशन है ना, ये इस $1 मिलियन, चाहे लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन नहीं किए गए, बट ये $1 मिलियन इन महाशय के नाम पे रहेंगे। पूरे प्रोसेस में ईमानदारी नहीं है, पर यहाँ ईमानदारी देखी जाती है इस पूरे प्रोसेस में। देखिए कुछ नहीं खरीदा, $1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, इन महाशय ने $1 मिलियन को इनके स्विस अकाउंट में पहुंचा दिया। तो ये जो थर्ड एंटिटी वाले होते ना, ये थर्ड एंटिटी वाला जो केस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, थर्ड एंटिटी बेसिकली करप्शन केसेस को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज ब्लैक मनी। यहीं पे आप अपने ब्लैक मनी को क्या करते हो, यहीं पे आप ब्लैक मनी को वाइट कर देते हो। आर यू गेटिंग मी? दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन यू कि हवाला मनी क्या होता है और आप हवाला के रूट को किस तरीके से ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ पहले तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हाउ द एंटायर यू नो इट टॉक्स अबाउट कि सिंस थर्ड कंट्री एंटिटीज इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं तो ये ब्लैक मनी नहीं है। देन स्विस अथॉरिटी ने बहुत बड़े बड़े वादे भी किए गए कि कैसे कि हम तो देखो मतलब कि वी आर सो पायस, देव पुरुष है हम तो, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो भी देव पुरुष है, हमारी गवर्नमेंट भी देव पुरुष है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट देन देर इज समथिंग, देर इज अ कैच इन दिस, something very fishy, even he knows, right? His smirk on his face can explain that. The fishy is now Swiss authorities have shared the data with India that include the financial accounts of Indian client in Swiss bank। मतलब जो हमारे इंडियन क्लाइंट्स हैं उनका स्विस बैंक में जो अकाउंट है वो इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर की गई थी, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज रिफ्यूज टू शेयर द डिटेल्स विद द जनरल पब्लिक। हमको तो नहीं बताया क्या किसका है क्या है, और बहुत बड़ा बवाल भी खड़ा हुआ था इस बात पे। नाउ दिस एंटायर कारपेट ऑफ ओपेसिटी, इट इज बिहाइंड द कारपेट ऑफ ओपेसिटी एंड समथिंग फिशी इज बीइंग टेकिंग प्लेस विच इज प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्फिडेंशियलिटी। ना अब यहाँ पे ना यू कैन अंडरस्टैंड, अब थोड़ा सा सोचो, दिस इज फिशी एंड दिस एक्सप्लेन व्हाई अ गवर्नमेंट इज नॉट एज देवपुरुष एज इट हैज क्लेम टू बी। नाउ लेट्स मूव अहेड और थोड़ा सा समझते हैं। I hope you have understood the concept. Now stay healthy, stay safe and stay connected to AQYS. And you understand क्या fishy है यहाँ पे, आपको भी समझ लेना होगा। Now, bye bye.